Negative examples for future perfect tense. I will not have completed my homework by 6 p.m. मैंने शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा. You will not have left by the time she arrives. तुम उसके आने तक नहीं निकले होंगे. They will not have finished the project by Friday. उन्होंने शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा. She will not have graduated by next year. उसने अगले साल तक स्नातक नहीं किया होगा. He will not have visited his grandparents by the end of the month. उसने महीने के अंत तक अपने दादा दादी को नहीं देखा होगा. We will not have read the book by tomorrow. हमने कल तक किताब नहीं पढ़ी होगी. You will not have reached your destination by noon. तुम दोपहर तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच चुके होंगे. I will not have tried the new restaurant by then. मैंने तब तक नए रेस्टोरेंट की कोशिश नहीं की होगी. They will not have met the deadline for submissions. उन्होंने सबमिशन के लिए समय सीमा को पूरा नहीं किया होगा. She will not have found a job by next month. उसने अगले महीने तक नौकरी नहीं पाई होगी. He will not have finished his presentation by 4 p.m. उसने शाम 4 बजे तक अपनी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं की होगी. We will not have made our decision by the meeting. हम बैठक तक अपना निर्णय नहीं ले चुके होंगे. I will not have paid the bills by next week. मैंने अगले हफ्ते तक बिल नहीं भरे होंगे. You will not have cleaned the house before the guests arrive. तुम मेहमानों के आने से पहले घर नहीं साफ करोगे. They will not have enjoyed their vacation by the time they return. उन्होंने वापस आने तक अपनी छुट्टी का आनंद नहीं लिया होगा. She will not have learned the lesson by the time of the test. उसने परीक्षा के समय तक पाठ नहीं सीखा होगा. He will not have prepared for the interview by tomorrow. उसने कल तक इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की होगी. We will not have eaten lunch before the meeting starts. हम बैठक शुरू होने से पहले लंच नहीं खा चुके होंगे. I will not have taken the exam by the end of the month. मैंने महीने के अंत तक परीक्षा नहीं दी होगी. You will not have participated in the event by next week. तुमने अगले हफ्ते तक इवेंट में भाग नहीं लिया होगा. Interrogative examples for future perfect tense. Will you have completed your homework by 6 p.m.? क्या तुमने शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा किया होगा? Shall we have left by the time you arrive? क्या हम तुम पहुंचने तक निकल चुके होंगे? Will they have completed the project by Friday? क्या उन्होंने शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा किया होगा? Will she have graduated by next year? क्या उसने अगले साल तक स्नातक किया होगा? Will he have visited his grandparents by the end of the month? क्या उसने महीने के अंत तक अपने दादा दादी को देखा होगा? Will I have read the book by tomorrow? क्या मैंने कल तक किताब पढ़ी होगी? Shall we have reached our destination by noon? क्या हम दोपहर तक अपने गंतव्य पर पहुंच चुके होंगे? Will you have tried the new restaurant by then? क्या तुमने तब तक नए रेस्टोरेंट की कोशिश की होगी? Will they have met the deadline for submissions? क्या उन्होंने सबमिशन के लिए समय सीमा को पूरा किया होगा? Will she have found a job by next month? क्या उसने अगले महीने तक नौकरी पाई होगी? Will he have finished his presentation by 4 p.m.? क्या उसने शाम 4 बजे तक अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की होगी? Will we have made our decision by the meeting? क्या हम बैठक तक अपना निर्णय ले चुके होंगे? Shall I have paid the bills by next week? क्या मैंने अगले हफ्ते तक बिल भरे होंगे? Will you have cleaned the house before the guests arrive? क्या तुम मेहमानों के आने से पहले घर साफ करोगे? Will they have enjoyed their vacation by the time they return? क्या उन्होंने वापस आने तक अपनी छुट्टी का आनंद लिया होगा? Will she have learned the lesson by the time of the test? क्या उसने परीक्षा के समय तक पाठ सीखा होगा? Will he have prepared for the interview by tomorrow? क्या उसने कल तक इंटरव्यू के लिए तैयारी की होगी? Shall we have eaten lunch before the meeting starts? क्या हम बैठक शुरू होने से पहले लंच खा चुके होंगे? Will I have taken the exam by the end of the month? क्या मैंने महीने के अंत तक परीक्षा दी होगी? Will you have participated in the event by next week? क्या तुमने अगले हफ्ते तक इवेंट में भाग लिया होगा? Negative interrogative examples for future perfect tense. Will you not have finished your homework by 6 p.m.? क्या तुमने शाम 6 बजे तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा? Shall we not have left by the time you arrive? क्या हम तुम पहुंचने तक नहीं निकल चुके होंगे? Will they not have completed the project by Friday? क्या उन्होंने शुक्रवार तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा?
Will she not have graduated by next year? क्या उसने अगले साल तक स्नातक नहीं किया होगा? Will he not have visited his grandparents by the end of the month? क्या उसने महीने के अंत तक अपने दादा दादी को नहीं देखा होगा? Will I not have read the book by tomorrow? क्या मैंने कल तक किताब नहीं पढ़ी होगी? Shall we not have reached our destination by noon? क्या हम दोपहर तक अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच चुके होंगे? Will you not have tried the new restaurant by then? क्या तुमने तब तक नए रेस्टोरेंट की कोशिश नहीं की होगी? Will they not have met the deadline for submissions? क्या उन्होंने सबमिशन के लिए समय सीमा को पूरा नहीं किया होगा? Will she not have found a job by next month? क्या उसने अगले महीने तक नौकरी नहीं पाई होगी? Will he not have finished his presentation by 4 p.m? क्या उसने शाम 4 बजे तक अपनी प्रेजेंटेशन नहीं पूरी की होगी? Will we not have made our decision by the meeting? क्या हम बैठक तक अपना निर्णय नहीं ले चुके होंगे? Shall I not have paid the bills by next week? क्या मैंने अगले हफ्ते तक बिल नहीं भरे होंगे? Will you not have cleaned the house before the guests arrive? क्या तुम मेहमानों के आने से पहले घर नहीं साफ करोगे? Will they not have enjoyed their vacation by the time they return? क्या उन्होंने वापस आने तक अपनी छुट्टी का आनंद नहीं लिया होगा? Will she not have learned the lesson by the time of the test? क्या उसने परीक्षा के समय तक पाठ नहीं सीखा होगा? Will he not have prepared for the interview by tomorrow? क्या उसने कल तक इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की होगी? Shall we not have eaten lunch before the meeting starts? क्या हम बैठक शुरू होने से पहले लंच नहीं खा चुके होंगे? Will I not have taken the exam by the end of the month? क्या मैंने महीने के अंत तक परीक्षा नहीं दी होगी? Will you not have participated in the event by next week? क्या तुमने अगले हफ्ते तक इवेंट में भाग नहीं लिया होगा? Planning a surprise party. Have you decided on a date for the surprise party? क्या तुमने सरप्राइज पार्टी की तारीख तय कर ली है? I think we will have it next Saturday. मुझे लगता है कि हम इसे अगले शनिवार को करेंगे. Will everyone have arrived by 6 p.m? क्या सभी लोग शाम 6 बजे तक पहुंच चुके होंगे? Yes, they will have all gathered at my place by then. हाँ, तब तक वे सभी मेरे घर पर इकट्ठा हो चुके होंगे. Have you sent out the invitations yet? क्या तुमने अब तक निमंत्रण भेज दिए हैं? I will have sent them out by the end of this week. मैंने इसे इस हफ्ते के अंत तक भेज दिया होगा. Will we have enough decorations for the party? क्या पार्टी के लिए हमारे पास पर्याप्त सजावट होगी? I will have bought everything we need by Friday. मैंने शुक्रवार तक हमें जो कुछ भी चाहिए, सब खरीद लिया होगा. Have you thought about the cake? क्या तुमने केक के बारे में सोचा है? Yes, I will have ordered it by tomorrow. हाँ, मैंने इसे कल तक ऑर्डर कर दिया होगा. Will you have arranged for music by the time the guests arrive? क्या तुमने मेहमानों के आने तक संगीत का इंतजाम कर लिया होगा? I will have set it up before the party starts. मैंने पार्टी शुरू होने से पहले इसे सेट कर लिया होगा. Preparing for a job interview. Have you prepared your resume for the interview? क्या तुमने इंटरव्यू के लिए अपना रिज्यूमे तैयार किया है? Yes, I will have updated it by the time I go for the interview. हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए जाने तक इसे अपडेट कर लूँगा. Will you have practiced your answers to common questions? क्या तुमने सामान्य सवालों के जवाब देने का अभ्यास किया होगा? I will have rehearsed them with a friend. मैंने एक दोस्त के साथ उनका अभ्यास किया होगा. Have you chosen your outfit for the interview? क्या तुमने इंटरव्यू के लिए अपना आउटफिट चुन लिया है? I will have decided on something professional by tonight. मैं आज रात तक कुछ पेशेवर चुन लूँगा. Will you have researched the company before the interview? क्या तुम इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कर चुके होंगे? Yes, I will have gathered all the necessary information. हाँ, मैंने सभी आवश्यक जानकारी जुटा ली होगी. Have you prepared questions to ask the interviewer? क्या तुमने इंटरव्यूअर से पूछने के लिए सवाल तैयार किए हैं? I will have thought of a few good questions. मैंने कुछ अच्छे सवालों पर विचार कर लिया होगा. Will you have arrived early to the interview? क्या तुम इंटरव्यू के लिए जल्दी पहुंच चुके होंगे? Yes, I will have planned to arrive at least 15 minutes early. हाँ, मैंने कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचने की योजना बनाई होगी. Have you followed up with the company after the interview? क्या तुमने इंटरव्यू के बाद कंपनी से संपर्क किया है? I will have sent a thank you email by the end of the day.
मैंने दिन के अंत तक एक धन्यवाद ईमेल भेज दिया होगा। प्लानिंग अ वेकेशन। हैव यू डिसाइडेड वेयर यू वांट टू गो फॉर वेकेशन? क्या तुमने तय किया है कि तुम छुट्टी में कहाँ जाना चाहते हो? यस, आई विल हैव चोजन अ बीच डेस्टिनेशन बाय नेक्स्ट वीक। हाँ, मैं अगले हफ्ते तक एक समुद्र तट गंतव्य चुन लूंगा। विल यू हैव बुक्ड योर फ्लाइट्स बाय देन? क्या तुमने तब तक अपनी फ्लाइट्स बुक कर ली होंगी? आई विल हैव रिजर्व्ड माई टिकट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस महीने के अंत तक अपनी टिकटें बुक कर लूंगा। हैव यू मेड अरेंजमेंट्स फॉर अकोमोडेशन? क्या तुमने ठहरने के लिए कोई व्यवस्था की है? आई विल हैव बुक्ड अ होटल रूम बिफोर आवर ट्रिप। मैं अपनी यात्रा से पहले एक होटल का कमरा बुक कर लूंगा। विल यू हैव पैक्ड योर बैग्स अ डे बिफोर लीविंग? क्या तुम जाने से एक दिन पहले अपना बैग पैक कर लोगे? यस, आई विल हैव एवरीथिंग पैक्ड एंड रेडी टू गो। हाँ, मैंने सब कुछ पैक कर लिया होगा और जाने के लिए तैयार रहूंगा। हैव यू क्रिएटेड एन आइटिनरी फॉर द वेकेशन? क्या तुमने छुट्टी के लिए एक कार्यक्रम बनाया है? आई विल हैव प्लान्ड ऑल द एक्टिविटीज वी वांट टू डू। मैंने सभी गतिविधियों की योजना बना ली होगी जो हम करना चाहते हैं। विल यू हैव चेक्ड द वेदर फोरकास्ट बिफोर पैकिंग? क्या तुम पैकिंग से पहले मौसम का पूर्वानुमान देख चुके होंगे? यस, आई विल हैव इंश्योर्ड दैट द वेदर इज सूटेबल फॉर आवर प्लान्स। हाँ, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया होगा कि मौसम हमारी योजनाओं के लिए अनुकूल है। हैव यू इन्फॉर्म्ड योर वर्कप्लेस अबाउट योर वेकेशन? क्या तुमने अपनी छुट्टी के बारे में अपने कार्यस्थल को सूचित किया है? आई विल हैव सबमिटेड माई लीव रिक्वेस्ट इन एडवांस। मैंने पहले से अपनी छुट्टी की अनुरोध जमा कर दी होगी। हैव यू चोजन अ डेट फॉर द वेडिंग? क्या तुमने शादी की तारीख तय की है? यस, आई विल हैव फाइनलाइज्ड द डेट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। हाँ, मैं इस महीने के अंत तक तारीख तय कर लूंगा। विल यू हैव सेंट आउट इन्विटेशंस बाय देन? क्या तुमने तब तक निमंत्रण भेज दिए होंगे? आई विल हैव मेल्ड ऑल द इन्विटेशंस 2 वीक्स बिफोर द वेडिंग। मैं शादी से 2 सप्ताह पहले सभी निमंत्रण भेज दूंगा। हैव यू डिसाइडेड ऑन अ वेन्यू? क्या तुमने स्थान तय किया है? यस, आई विल हैव बुक्ड द बैंक्वेट हॉल बाय नेक्स्ट वीक। हाँ, मैं अगले हफ्ते तक बैंक्वेट हॉल बुक कर लूंगा। विल यू हैव चोजन अ केटरर फॉर द रिसेप्शन? क्या तुमने रिसेप्शन के लिए एक कैटरर चुन लिया है? आई विल हैव अरेंज्ड द केटरिंग सर्विस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस महीने के अंत तक कैटरिंग सेवा की व्यवस्था कर लूंगा। हैव यू थॉट अबाउट द वेडिंग अटायर? क्या तुमने शादी के कपड़ों के बारे में सोचा है? आई विल हैव पिक्ड माई आउटफिट एंड एक्सेसरीज सून। मैं जल्द ही अपना आउटफिट और सहायक सामान चुन लूंगा। विल यू हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द फोटोग्राफी? क्या तुमने फोटोग्राफी के लिए व्यवस्था की है? यस, आई विल हैव हायर्ड अ फोटोग्राफर बाय नेक्स्ट वीक। हाँ, मैं अगले हफ्ते तक एक फोटोग्राफर हायर कर लूंगा। हैव यू प्लान द म्यूजिक फॉर द सेरेमनी? क्या तुमने समारोह के लिए संगीत की योजना बनाई है? आई विल हैव सेलेक्टेड द सॉन्ग्स वी वांट टू प्ले। मैंने जो गाने हम चलाना चाहते हैं उन्हें चुन लिया होगा। विल यू हैव स्पोकन टू अ वेडिंग प्लानर फॉर हेल्प? क्या तुमने मदद के लिए एक शादी के आयोजक से बात की है? यस, आई विल हैव कंसल्टेड अ प्लानर बाय दिस वीकेंड। हाँ, मैं इस वीकेंड तक एक आयोजक से सलाह लूंगा। हैव यू डिस्कस्ड द गेस्ट लिस्ट विद योर फैमिली? क्या तुमने अपने परिवार के साथ मेहमानों की सूची पर चर्चा की है? आई विल हैव क्रिएटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द गेस्ट लिस्ट बाय टुमारो। मैं कल तक मेहमानों की सूची का एक मसौदा बना लूंगा। प्लानिंग अ फैमिली वेकेशन। हैव यू डिसाइडेड ऑन अ डेस्टिनेशन फॉर द वेकेशन? क्या तुमने छुट्टियों के लिए एक जगह तय की है? यस, आई विल हैव चोजन अ ब्यूटिफुल बीच डेस्टिनेशन। हाँ, मैं एक खूबसूरत समुद्री किनारे की जगह चुन लूंगा। विल यू हैव बुक्ड द फ्लाइट्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ? क्या तुमने इस महीने के अंत तक उड़ानें बुक कर ली होंगी? आई विल हैव रिजर्व्ड द फ्लाइट्स 2 months इन एडवांस। मैंने 2 महीने पहले ही उड़ानें बुक कर ली होंगी। हैव यू चेक्ड द होटल अवेलेबिलिटी? क्या तुमने होटल की उपलब्धता चेक की है? यस, आई विल हैव कंफर्म्ड आवर होटल रिजर्वेशंस सून। हाँ, मैं जल्द ही हमारे होटल की बुकिंग की पुष्टि कर लूंगा। विल यू हैव प्लान्ड एक्टिविटीज फॉर द ट्रिप? क्या तुमने यात्रा के लिए गतिविधियां तय की हैं? आई विल हैव मेड अ लिस्ट ऑफ फन एक्टिविटीज टू डू एट द बीच। मैंने समुद्र तट पर करने के लिए मजेदार गतिविधियों की सूची बना ली होगी। हैव यू प्रिपेयर्ड अ बजट फॉर द वेकेशन?
क्या तुमने छुट्टियों का बजट तैयार किया है? Yes, I will have set a budget for all expenses. हाँ, मैंने सभी खर्चों के लिए बजट तय कर लिया होगा. Will you have packed your bags before the trip? क्या तुमने यात्रा से पहले अपने बैग पैक कर लिए होंगे? I will have started packing a week before we leave. मैं यात्रा से एक हफ्ते पहले पैकिंग शुरू कर दूंगा. Have you informed your workplace about your vacation? क्या तुमने अपने काम की जगह को छुट्टियों के बारे में सूचित किया है? I will have submitted my leave application by next week. मैं अगले हफ्ते तक अपनी छुट्टी की आवेदन पत्र जमा कर दूंगा. Will you have checked the weather forecast for the destination? क्या तुमने उस जगह के लिए मौसम की भविष्यवाणी चेक की है? Yes, I will have looked up the weather conditions before packing. हाँ, मैं पैकिंग से पहले मौसम की स्थिति देख लूंगा. Have you thought about transportation at the destination? क्या तुमने उस जगह पर परिवहन के बारे में सोचा है? I will have arranged for a rental car in advance. मैंने पहले से ही एक किराए की कार की व्यवस्था कर ली होगी. Discussing a work project deadline. Have you finalized the project details yet? क्या तुमने परियोजना के विवरण को अंतिम रूप दे दिया है? Yes, I will have completed the initial planning by tomorrow. हाँ, मैं कल तक प्रारंभिक योजना को पूरा कर लूंगा. Will you have gathered all the necessary resources by next week? क्या तुम अगले हफ्ते तक सभी आवश्यक संसाधनों को जुटा लोगे? I will have collected all the materials by Friday. मैं शुक्रवार तक सभी सामग्री जुटा लूंगा. Have you assigned tasks to your team members? क्या तुमने अपनी टीम के सदस्यों को कार्य सौंप दिए हैं? Yes, I will have distributed the tasks by the end of the day. हाँ, मैं आज के अंत तक कार्यों को वितरित कर दूंगा. Will you have set up a meeting to discuss progress? क्या तुमने प्रगति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक तय की है? I will have scheduled the meeting for next Monday. मैंने अगली सोमवार के लिए बैठक निर्धारित कर दी है. Have you estimated the time required for each task? क्या तुमने प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाया है? Yes, I will have created a timeline for the project. हाँ, मैंने परियोजना के लिए एक समयरेखा बना ली होगी. Will you have reviewed everyone's work by the deadline? क्या तुम समय सीमा से पहले सभी के काम की समीक्षा करोगे? I will have checked each member's progress regularly. मैं नियमित रूप से प्रत्येक सदस्य की प्रगति की जांच करूंगा. Have you prepared the final report for submission? क्या तुमने सबमिशन के लिए अंतिम रिपोर्ट तैयार की है? I will have written the report by the end of next week. मैं अगले हफ्ते के अंत तक रिपोर्ट लिख लूंगा. Will you have shared the project updates with the stakeholders? क्या तुमने परियोजना के अपडेट को हितधारकों के साथ साझा किया है? Yes, I will have sent the updates before the meeting. हाँ, मैं बैठक से पहले अपडेट्स भेज दूंगा. Have you considered feedback from your team? क्या तुमने अपनी टीम से फीडबैक पर विचार किया है? I will have taken their suggestions into account. मैंने उनकी सुझावों को ध्यान में रख लिया होगा.